یا رب مدد، اس کے منہ سے آخری الفاظ نکلے۔ دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ پر لگی ہتھکڑی کو دیکھا اور آنکھیں بند کی، اس امید پر کہ سانس اس کی جسم کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن نہیں، دھڑکنیں تو چل رہی تھی ابھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب یاد آیا۔ اس کی زندگی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردے پر ابھری تھی۔ وہ ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ ربائشہ، اپنے نام کی پکار سن کر اس نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز تھی لیکن ساکن نہ ہوئی تھی۔ ہاں، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ زندگی تب بھی مشکل تھی لیکن اب جہنم بننے والی تھی۔ SHO درید یزدانی، آپا نے اس کے کان کے پاس بولا تو اس نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا آخری سہارا ہے درید یزدانی، اس سے مدد مانگنا۔ جس تھانے تمہیں لے جایا جا رہا ہے وہاں کا SHO ہے۔ میں فون کر دوں گی اسے، میرا بھانجا ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ مسکراہٹ اس نے حیرانی سے دیکھی تھی۔ اس مسکراہٹ میں یقین تھا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اپنے معمول پر آئی، جیسے جلتے کولے پر کسی نے پانی پھینکا ہو۔ اس کے بعد اس نے زمین سے نظریں نہ اٹھائی۔ وہ جانتی تھی محلے کا ہر فرد اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے کبھی بے حجاب نہ دیکھا تھا، آج اسے ننگے سر لیے بکھرا ہولیا دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھ میں تمسخر اور کچھ کی آنکھ میں ہمدردی تھی، کچھ کے لبوں پر اس کے لیے دعا تھی۔ اس نے وہاں سے جا کر بھی اوپر نہیں دیکھا تھا۔ اس تلخ حقیقت کو پینا بہت مشکل تھا کہ وہ ایک مجرم کی حیثیت سے تھانے لائی گئی تھی۔ اسے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھوں نے بند ہوتے ہی اس کی روح کو سکون پہنچایا تھا، جیسے کسی سفر سے تھک کر آئی ہو۔ مدد یا رب، اس کے دل سے پکار اٹھی تھی۔ رات کے 8 بجے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکا تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس مرد کی آواز گونجی۔ ربائشہ حق۔ اوکے، میرے کیبن میں بھیجو اسے۔ اس نے آخری آواز اس کی سنی، پھر اسی شخص کے کیبن میں پہنچایا گیا۔ باسط اور درید کی دوستی دن بہ دن گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک دوسرے کے گھر آنا اب عام سی بات تھی، لیکن باسط کی طبیعت کافی ریزرو سی تھی۔ وہ زیادہ لوگوں کے ہجوم میں ان میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے دوست بے حد کم تھے۔ ابھی بھی ان کے گھر داخل ہوا تو ملازم نے اسے بتایا کہ درید اپنے کمرے میں ہے۔ باسط نے درید کو بلوانے کا کہا، لیکن درید ہی نے اسے بلایا تھا آج ساتھ پڑھنے کے لیے۔ ان کی 10ویں جماعت کے امتحانات نزدیک تھے۔ درید نے اسے کمرے میں ہی بلوا لیا تھا۔ وہ جو اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، پچھلے لان سے رونے کی آواز سنتا ٹھٹکا۔ کون رو رہا تھا؟ آواز سے کوئی بچہ معلوم ہوا تھا اسے۔ وہ جاننا نہیں چاہتا تھا، لیکن انسانیت آڑے آ گئی۔ درید کی بہن وہاں سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا لٹل بٹر کپ؟ اس نے اس کے پھولے گالوں کو دیکھتے اسے نیا لقب دیا تھا۔ رابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور واپس چہرہ جھکا لیا۔ باسط کو حیرانی ہوئی اس کی اس طرح منہ موڑنے سے، لیکن شاید وہ اسے جانتی نہ تھی۔ وہ کچھ قدم دور وہیں اس کے پاس بیٹھا۔ وہ چھوٹی سی بچی پیلے فراک پہنے، بھورے بالوں کو آگے سے کلپ لگائے، پھولے گال لیے کیوٹ تھی بے حد۔ کیا ہوا بٹر کپ؟ میں اپنے بھائیوں کا دوست ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ باسط نے اسے کریدا۔ میں نہیں بتاؤں گی، اس نے سوسو کرتے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سب سے ناراض ہوں، اس نے کہتے اپنے فراک کو اٹھاتے سے ناک صاف کیا۔ تو وہ مسکرایا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی ناراضگی دور کر سکوں۔ اسے وہ کیوٹ سی لڑکی پسند آئی تھی۔ نہیں، بڑے لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے باسط کو دیکھ کر ایک بار پھر آنکھیں رگڑ ڈالی، جو اب سرخ ہو گئی تھی بار بار رگڑنے سے۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی باتیں نہیں کرتے، وہ ہرٹ کر دیتے ہیں، اس نے کہتے آنکھیں رگڑنے چاہیے کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نو، آپ کو کس نے ہرٹ کیا ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے بولا کسی کو مت بتانا، نہیں تو کل مجھے سزا ملے گی۔ کون؟ کس نے کہا؟ باسط کو حیرانی ہوئی، اس گھر میں اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس شخص نے سر پھر سے جھکایا تھا، چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جلد ملاقات ہوگی آپ سے منت وقار۔ لیکچر اوور ہوتے ہی وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ سامنے والی کلاس کی طرف تھا۔ وقار حسین کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ خود ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، ستیلا ہی صحیح لیکن تھا تو۔ اس کا باپ ان دنوں وقار حسین ہی سے تو جلن کا شکار تھا، کیونکہ اس وقت کی تمام بڑی ڈیلز وقار حسین کے ہاتھ میں تھی۔ اسے پتا تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ مخصوص کلاس میں داخل ہوتے اس نے یہاں وہاں نظریں گھمائی۔ وہاں موجود آدھی لڑکیوں نے اسے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کالی شلوار قمیض پر براؤن چادر کندھے پر رکھے، سلیوز کونیوں پر ٹکائے، بال جل سے سیٹ کیے گئے تھے۔
साफ रंगत और तराशे हुए खदोखाल लिए वो जाज़ब नजर था। इसके चेहरे की करख्तगी इसे दूसरों से मुनफरद बनाती थी। ये वजह थी कि वो ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाता था। वो जानता था अपनी कीमत, वो जानता था लड़कियां इसकी ख्वाहिशमंद रही हैं, लेकिन एक दो दोस्तों के अलावा इसने कभी ज्यादा इंटरेस्ट ना लिया था। मन्नत वकार, हु इज मन्नत वकार? इसने बुलंद आवाज में कहा। वो जो पिछले बेंच पर दुबकी बैठी थी फौरन से पहले सर उठाया। सामने मौजूद शख्स की रौबदार शख्सियत को देखते इसके हाथों पर पसीना उभरा था। जी, इसने हिम्मत करते उठते कहा कि वो नहीं जानती थी सामने वाला कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि यहीं का स्टूडेंट है। आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलवाया गया है। गो नो, इसने सीरियस से अंदाज में कहा और बाहर निकल गया। मन्नत ने डरते अपनी चीजें उठाई और बाहर निकल गई। अब इसे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता नहीं मालूम था। वो खामोशी से सीढ़ियां उतरती नीचे फ्लोर पर आई थी। इसे शदीद घबराहट का सामना था। इसे दूर ही से देखता पुरसरार सा मुस्कुराया था। इसने रुकते यहाँ वहाँ देखा, फिर हिम्मत करते पास से गुजरती लड़की को बुलाना चाहा, जिसने एक नजर इस पर डालकर इसकी बात सुनना मुनासिब न समझा। इसने कुछ दूर खड़े कासिम दिलावर को देखा, जिसने इसकी क्लास का बताया था। शायद इसे कोई गलत फहमी हुई थी कि इसने इसे गलत क्लास बताई थी, लेकिन साथ इसकी क्लास थी, इससे ज्यादा मुश्किल ना हुई थी। इसलिए वो कासिम दिलावर से दोबारा मदद लेने की गर्ज से आगे बढ़ी थी। सुनिए, इसने धीमी आवाज में कहा था। वो फौरन इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो जो तब से इससे खबर होता देख मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट सिमटी और वो सीधा हुआ। प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? इसने आंखें झुकाते कासिम दिलावर से दरियाफ्त किया था। कासिम का चेहरा पल में रोशन हुआ था। इसने ऊपर से लेकर नीचे तक इसका एक बार फिर जायजा लिया था। ये नजर दूर खड़ा वो बाखूबी समझता था। ये कैसी नजर थी? इसने सर झटका इसकी बला से। आओ मैं ले चलता हूँ, इसने कहा तो मन्नत से सर हाँ में हिलाते इस पर तशक्कर भरी नजर डाली और आगे बढ़ी। कासिम दिलावर ने पीछे चेहरा करते कुछ दूर खड़े अपने दोस्तों को देखते खबासत से आंख दबाई थी। अब वो इसे लिए बेसमेंट वाली तरफ आया था। वहां आते मन्नत का दिल कुछ गलत होने के एहसास से धड़का था। उफ मेरे सर, इसने सर पर हाथ मारते कहा। अब वो रोना भूल कर इसकी बातों में मगन थी। उन्होंने कैसे हर्ट किया? क्या आपको मार पड़ी है सबक न याद करने पर? इसने इस्तफसार किया। वो इसे कुछ बताने को तैयार ना थी तो वो थक कर उठ गया, लेकिन इससे पहले कि मुड़कर वापस जाता नजर सीधा इसके बाजुओं से टकराई थी जो स्लीवलेस थी। ये कहाँ से चोट लगी? क्या आपने अपने भैया को बताया है? इसके बाजू पर लाल निशान देखकर वो रुका। वो इसे देखकर पूछने लगा। इसने यहाँ वहाँ देखा, फिर इसे इशारे से बैठने का कहा तो वह हैरान होता वापस बैठ गया। पहले वो कुछ बोल नहीं रही थी, अब इसे बैठने का कह रही थी। ये मुझे मेरे सर ने हर्ट किया है, लेकिन किसी को बताना मत। उन्होंने कहा था वो मुझे मारेंगी। इसने राजदारी से इसके करीब होते कहा। क्यों मारा है? क्या आपको सबक नहीं आता? अब के बासत ने दिलचस्पी ली। इसने गर्दन को ना में हिलाया। वो ना कह रहे थे कि मैं इन्हें किस दूं गाल पर, लेकिन मैं भैयों के अलावा किसी से प्यार नहीं करती तो किस क्यों दूं? और उन्होंने मुझे यहाँ से जोर से पकड़ा और ये हो गया। इसने मासूमियत से कहते आंखें पटपटाई। वो जो दिलचस्पी से सुन रहा था अब ठटका। वो क्यों किस मांग रहे थे? 10वीं क्लास का बच्चा था वो, सब समझता था। पता नहीं, वो तो रोज कहते हैं। और पता है एक दिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे गाल पर हल्का सा काटा भी था। बासत के माथे पर बल पड़े थे। वो कौन घटिया शख्स था जो सब कर रहा था? रूबी मेरी जान, ये कब हुआ? दरेद बासत का इंतजार करता नीचे आया था, लेकिन यहाँ आकर वो इसकी आखिरी दो बातें सुन चुका था। बासत पे अपनी जगह से खड़ा हुआ था। भैया ऐसा तो रोज होता है, अब आप किसी को मत बताना, उन्होंने मना किया था। इसके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़िह थे। दुरेद यजदानी के चेहरे पर सख्त आसरात छा गए थे। इसने मुठियां भीजी थी। ये पहली बार था कि इसे गुस्सा आया था। इस 2 टके के मुलाजिम की हिम्मत कैसे हुई कि वो चिल्लाया और रूबी सहम गई। दुरेद, बासत ने बोलते से राबी की तरफ देखने का कहा जो इतनी सी आवाज पर सहम गई थी। कासिम ने इसे देखा जो अब यहाँ वहाँ देख रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसने अब कासिम को देखते कहा तो वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है कि हम हर फ्रेशर को बेसमेंट दिखाते हैं, यहाँ बैक डोर है, अगर कोई मसला हो तो यहाँ से निकलना है तुम्हें। इसने बिना सोचे अपनी फजूल सी हाँकी थी। इसने इसे सिगरेट सुलगाते इसे देखा था जो हसीन थी। इसने दुपट्टे ने खुद को ढांपा हुआ था सारा। मुझे वापस जाना है, मन्नत ने डरते कहा। ओके चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कासिम दिलावर ने हंसते कहा कि क्या? मन्नत को अब खौफ आ रहा था। यही वजह थी कि इसके जिस्म में एक लर्जा तारी हो चुका था। ये पियो, इसने अपने लबों में दबाया, सिगरेट इसकी तरफ बढ़ाया। आखिर यही सब तो करता था वो। नौजवान नस्ल को इन सब पर लगाना, अभी इसने अपना पहला शिकारी ढूंढते यही किया था। मैं नहीं पीती,
इसने सीढ़ियों पर काफी लड़कियों को सिगरेट सुलगाते देखा था। तो अब पी लो, अच्छी होती है ये। दिलावर ने सिगरेट का एक कश इस पर छोड़ते कहा तो वो खांसती दूर हटी। सीढ़ियों पर किसी का साया देखते वो सिगरेट इसके हाथ में पकड़ाता फौरन बैक डोर से निकला था और मन्नत वकार बहुत इस सिगरेट और इसके धुएं के साथ वहीं खड़ी रह गई। सामने इस शख्स को खड़ा देख इसमें उम्मीद जागी थी। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा। तुम सिगरेट पीती हो? उफ, इसने डरमाई अंदाज में कहा था। नहीं नहीं, ये तो मेरा नहीं है। तुम्हें यूनिवर्सिटी के रूल्स नहीं पता, ये सब करना मना है यहाँ। इसने संजीदगी से कहा और इसके नजदीक हुआ। मन्नत तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हुआ है। उसे घसीटता ऊपर ले जाने लगा। इसके हाथ से सिगरेट वो थाम चुका था। हकीकत इसे नहीं पता थी, लेकिन वो जानता था यह हरकत इस डरपोक लड़की की नहीं। लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता था, जिसकी भी हो। इसे तो पहला मौका मिल चुका था। इसने इसे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर लाते बाहर खड़ा किया था। देखते अंदर जाने की इजाजत मांगी थी। वो गार्ड इसकी पहुंच से वाकिफ था, इसने इसे जाने दिया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो प्रिंसिपल ने इन दोनों को देखा। सर, ये लड़की बेसमेंट में सिगरेट नोशी करती पाई गई है। मन्नत जो कब से ये सब समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी, चौंकते फौरन सर उठाया। रिफ्रेशर? प्रिंसिपल ने इस्तफसार किया। जी सर। आपको कैसे पता लगा कि ये बेसमेंट में है? सर, मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने इनका पीछा किया। ये इसने सिगरेट इनके सामने किया। ओके, जाइए आप। उन्होंने कहते से बाहर भेजा तो वो भी एक नजर इसके सफेद पड़ते चेहरे पर डालकर निकल गया। शेरनेम? सर, मैंने कुछ नहीं किया। तब से आंख में अटके आंसू अब भल भल निकले थे। शेरनेम? मन्नत। फुल नेम? मन्नत वकार। वकार हसैन? उन्होंने कुछ सोचते पूछा, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने वकार हसैन की तरफ से कॉल मसूल हुई थी। जी, इसने आंसू चेहरे से रगड़ते कहा। ये सब इन्हें इसके डर और आंसुओं से कहीं से नहीं लगा था कि वह मासूम लड़की ये हरकत कर सकती है, और वकार हसैन ने इन्हें खास तौर पर इसकी हिफाजत करने की तनबीह की थी। ओके मन्नत, तो बताइए क्या हुआ था? इसने डरते इन्हें सब बता दिया था। तो उन्होंने सर हिलाया। क्या नाम था इस लड़के का? मुझे नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी मसला हो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं। यू मे गो नाउ, उन्होंने कहा तो इसने नम आंखों से सर उठाया। और ये बात इसके बाबा को नहीं। वो बाहर निकली तो वो कुछ दूर खड़ा शायद इसी का मुंतजर था। वो पास से गुजरी और रुकी और अपनी नम मासूम झील जैसी आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। आई हेट यू, 3 लफ्ज अदा करते इसकी आवाज रुंध गई थी। वो दौड़ते हुए वहां से निकल गई थी। ये पहली बार इसने सुना था खुद के लिए, अब न जाने कितनी बार सुनने वाला था। इसने 11:15 का इंतजार न जाने कैसे किया था और फिर वक्त आन पहुंचा था। वो खामोशी से इस शख्स के साथ बाहर निकल गई थी। किसी ने भी इनसे नहीं पूछा था कुछ, शायद दरेद जिजदानी का खौफ था। वो बाहर गई तो वो अपनी गाड़ी में मौजूद था। पीछे बैठी तो उसने गाड़ी जन से भगाई और मेन रोड पर डाली। तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? इसने सामने वाला आईना इसके ऊपर सेट करते कहा। नहीं, इसने कहते खिड़की से बाहर देखा था। मेरे फ्लैट, इसने कहते कुछ जांचना चाहा, लेकिन इस लड़की के चेहरे के तासरात हनूज थे। इसने सर झटका। सब एक जैसी होती हैं, इसने दिल में सोचा। गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आज इसे आपा का फोन आया था। अब इसे महल्लेदार लड़की को बचाना चाहती थी, जो इसकी दोस्त की बेटी भी थी। इसने ही वैसा ही किया था। इनका कहना था कि वो इसे मंजर आम से 1-2 साल के लिए गायब कर दे। इसकी सहेली माँ और ताया की जमानत कल होने वाली है, जिससे वो अनजान थी। इसके बाप को इंसाफ नहीं मिला था। वो SHO कैसे इसे वहां से निकलवा लाया था, इस अंधे कानून को देखती वो मन ही मन में मुस्कुराई थी। वो तमाम लोग जो ऊंचे ओहदों पर फायज हैं, इनमें कभी कुछ नहीं पूछा जाता कि वो क्या कर रहे हैं। इसके चेहरे की तलख मुस्कुराहट आगे बैठे दरीद जिजदानी ने भी देखी थी। इसने गाड़ी झटके से रोकी तो इसके पीछे उतरी, इसके साथ इसके पीछे चलने लगी। तीसरी बिल्डिंग के रूम नंबर 46 में आए थे। वो फ्लैट अच्छा खासा वसी था। इसने इसे देखा जो जूते उतारता वहीं सामने सोफे पर बैठ गया था। बैठ जाओ लड़की, इसने कहा तो वो भी बैठ गई। इस 1 साल में क्या करोगी? जाहिर सी बात है, अपने आप को पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। इसने सर उठा के इस शख्स को देखा था। ऐसे मत देखो, तुम सारे काम मेरे करोगी बिना मुआवजे के। भाई तुम्हें इस जेल से निकलवा कर लाया हूँ, इतना तो बनता है ना। इसने सर हिलाया। आगे क्या होने वाला था वो अनजान थी, लेकिन थोड़ी पुरसुकून कि जिंदगी इस काल कोठरी में तो नहीं गुजरने वाली थी। कहीं भी काम कर लूंगी, आपको इस जगह इतने एहसान में एक साथ नहीं करता। एक आज कर दिया है, वक्त के साथ हो सकता है आगे भी कर दूं। इसने जमाई लेते बेजारी से कहा था। यहाँ मेरे कमरे के अलावा एक गेस्ट रूम है, अब वो तुम्हें नहीं दे सकता। ये बाहर लॉन्च है और एक स्टोर, जहाँ रहना है देख लो। वो कहता उठकर चला गया। इसने इस फ्लैट में मौजूद आखिरी दरवाजे की तरफ देखा।
और इसकी तरफ चली गई। वो छोटा सा स्टोर रूम था, लेकिन ज्यादा सामान नहीं था। वो सफाई को कल पर डालती, चादर वहीं रखती, वहां मौजूद गद्दे पर लेट गई जो वहीं पड़ा था। इसके सांप इस कदर थक चुके थे कि वो बस नींद लेना चाहती थी। फिर वो कल की फिक्र से आजाद आंखें मूंद गई, ये जाने बिना की जिंदगी से कैसे कैसे इम्तिहान लेने वाली है। दुरेद, तुम बुलवाओ इसे फोन कर कर। बासत ने इसे आंखों से ठंडा रहने की तलकीन की थी। दुरेद ने भीजे जबरों से मुलाजिम को आवाज देते फोन लाने को कहा था। पापा को वो अभी बाद में बताता या शायद बताता ही ना। इसकी बहन का मामला था, बाप के घर आने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो तैश से यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। जवान खून था, जोश मार रहा था। रुबाब, बैठ जाए। इसे डरता देख बासत ने कहा तो वो बैठ गई। दुरेद, बैठ जाओ। बासत ने दुरेद को भी खामोशी से बैठने का इशारा किया। ये कब से हो रहा है? बासत ने पूछा। सर ऐसे ही करते हैं, इसने सादगी से जवाब दिया तो दुरेद का गुस्सा मजीद बढ़ा। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? बासत ने कहा तो इसके साथ दुरेद ने भी सर उठाकर इसे देखा। इसने नाम में सर हिलाया। दुरेद को अब वो देख भी नहीं रही थी क्योंकि वो चिल्लाया था। इसे बैड टच बोलते हैं। जब कोई आपको हाथ लगाए और छूने की कोशिश करे तो समझिए ये अच्छा नहीं है। आपको फौरन अपने बाबा और भैयों को बताना था। बासत ने इसे समझाया। वो गौर से इसे सुन रही थी। दुरेद ने इसे देखा जो इसकी बहन को समझा रहा था। जब भी आपको लगे कि कोई आपसे ऐसी बातें कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही और अच्छी ना लगे तो फौरन वो जगह छोड़ दें। किसी भी अनजान शख्स से ना ही बात करनी है ना ही इसकी बात सुननी है, और टच तो किसी को नहीं करने देना। ओह, इसे ध्यान से सुनती सर तेजी से हाँ में हिला रही थी। अब आपको पता चल गया ना कि बैड टच क्या होता है? बासत ने इसे देखते कहा तो इसने सर हाँ में हिलाया। ओके गुड गर्ल, बाबा और भैयों के अलावा किसी से बात नहीं माननी। ओके चले जाओ, भाग कर देख कर आओ आपके बाबा आ गए हैं या नहीं। इसने इसे भेजने की खातर कहा था। इसने दुरेद को देखा जो तशक्कर भरी नजरों से इसे देख रहा था। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अपनी बहन को भी मैं यही सब समझा चुका। मुझे ये आसान लगा तो बता दिया, बासत ने कहा। तेरी बहन? दुरेद ने हैरानी से पूछा। लंबी कहानियां फिर कभी। दुरेद ने इसके करीब आते से गले से लगाया और नम आंखों से मुस्कुरा दिया। इसे हीरे जैसा दोस्त मिला था। शायद वो इतने अच्छे से रुबाब को ये सब ना बता पाता। सब बातें इसकी माँ की बताने वाली थी, लेकिन वो तो नहीं थी ना, तो ये सब अब इसी का फर्ज बनता था। इसके बाद इसने कोई क्लास ली ही नहीं थी। पहले दिन ये सब इसका नन्हा दिमाग सह नहीं पा रहा था। वो बाहर निकली। इसके बाप ने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा था, सो वो इन्हीं के साथ ये कहती बाहर आ गई कि आज पहले दिन एक ही क्लास थी। वो घर चली गई थी और सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। इसे नहीं जाना था वहां वापस, इस जगह जहाँ इतने गंदे लोग थे। तबरेज शाह ने इसे जाते देखा था। इसका दिल खाली था। इन सब के बाद वो कंधे उचकाता आगे बढ़ गया था। फिर पूरा दिन वो इसे कहीं नजर न आई थी, शायद जा चुकी थी। डरपोक हरनी, इसने पहला खिताब दे दिया था इसे। आज पहली मुलाकात इन दोनों की अच्छी तो हरगिज ना थी, शायद आगे भी नहीं होने वाली थी। इसने कभी ये फजूल की हरकतें इससे पहले नहीं की थी, लेकिन अब कर रहा था एक खास मकसद के तहत। वो घर आकर अपने कमरे में चला गया था। घर में भी इसकी कहाँ किसी से ज्यादा बनती थी। शाम के खाने की मेज पर इसकी माँ और स्तेला बाप मौजूद थे। कब खत्म हो रहा तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर? इसके बाप ने मुंह में नवाला डालते पूछा था। 4 महीनों में इसने बिना इनकी तरफ देखते जवाब दिया था। इसकी माँ फोन पर मसरूफ थी खाने के साथ। वैसे भी इन्हें कहाँ किसी चीज में दिलचस्पी हुआ करती थी। इसके बाद बिजनेस में आओ, बहुत पैसा लगाया है तुम पर मैंने, जरा मुझे भी फायदा पहुंचाओ कोई। जी डैड, जल्दी। इसका सतेला बाप इसका आइडियल रहा था हमेशा से। वो इन्हीं की तरह कामयाब बनना चाहता था। यही वजह थी कि वो इनकी हर तल्ख बात को बिना कुछ कहे सह जाता था। मैं जल्द ही आपको फायदा पहुंचाऊंगा डैड। इसने दिल में सोचते फैसला किया था जिस पर इसे इन्हें 4 महीनों में काम करना था। सुबह वो उठी तो वो जा चुका था। इसने दुपट्टा बांधा और काम में जुट गई। फ्लैट बाजार तो साफ दिखा, लेकिन था नहीं। सारा सामान घर के दराजों और अलमारियों में छुपाया गया था कि घर साफ दिखे। इसने सब निकाल कर कूड़े का एक थैला बना डाला था। अब इसकी कमर की हालत नाजुक थी। शाम के 7 बजे इसने सारा फ्लैट सवाई इसके कमरे के चमका डाला था। इसने इस कमरे में जाना मुनासिब न समझा था। यही वजह थी इसके दरवाजे के पास से भी वो नहीं गई थी। सुबह इसने किचन में मौजूद डबल रोटी के 2 पीस खाए थे। अब इसकी भूख से जान निकल रही थी, लेकिन घर में खाने को कुछ न था। वो बार बार पानी पीकर खुद को तसल्ली देती कि शायद वो आता सामान ले आए। शाम 8:30 बजे इसकी वापसी हुई थी। साफ घर को देखते इसके दिल पर अच्छा तासर पड़ा था। इसने खाने का शॉपर किचन में रखा तो इसकी भूख फिर से चमक उठी थी। खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो कमरे में चला गया। कुछ देर पहले जो इस पर अच्छा तासर पड़ा था वो पल में जायल हुआ था। लड़की, वो चीखा। वो जो सामान निकाल रही थी,
चौंकी और इसकी तरफ गई। मेरा कमरा किसने साफ करना था? वो गुर्राया। वो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। किस चीज का? इसने बेजारी से इसकी शक्ल देखी जो दुपट्टे में लिपटी थी। आपकी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने से। इसीलिए नहीं किया। वो इसकी आवाज से डर गई थी लेकिन हिम्मत करते बोली, घर की मुलाजमाओं को इजाजत होती है तो तुम भी कर सकती हो। कल मुझे ये साफ मिले। इसने पल में इसे इसकी औकात याद दिलाई थी। इसके मुंह पर दरवाजा बंद किया था। इसका दिल पल के लिए दुखा था लेकिन फिर से गहरी सांस भरी कि यही जिंदगी थी अब। लेकिन अब तक वो महफूज थी। वो कैसा भी था कम अज कम इसके साथ हद में रहा था, ना ज्यादा बात की थी। इसके लिए यही बायस राहत था। इसने सामान निकाला जिसमें एक टीन और बिरयानी का एक बड़ा डब्बा था। तो क्या वो इसके लिए कुछ नहीं लाया? इसने फ्रेश होते इसे खाना मंगवा लिया था तो वो लेकर आई और वहीं खड़ी हो गई। इसने खाना खाना शुरू किया तो वापस किचन में आकर स्टूल पर बैठ गई। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब पानी भी से राहत ना दे सका। वो वहीं बैठी अपनी किस्मत को सोचती रही। अपने घर में से कभी सारा दिन के लिए भूखा तो ना रहना पड़ता था। वो उठकर चला गया और इसके बर्तन उठाने गई। टीन खाली था लेकिन बिरयानी की प्लेट में कुछ बिरयानी बाकी थी। इसकी प्लेट के हालात काफी बुरे थे। इसकी जूठी हड्डियां इसमें मिक्स पड़ी थी और इसका इस्तेमाल शुदा टिश्यू भी इन्हीं चावलों में फेंका गया था। वो फौरन किचन में इसकी प्लेट लेकर आई। टिश्यू और हड्डियां निकालते वहीं स्टूल पर बैठी इसका बचा हुआ खाने लगी। अब ना कुछ खाती तो बेहोश हो जाती। इस 6-7 नवालों से इसे कुछ तो आसरा हो जाता। वह जल्दी जल्दी खाती। 2 गिलास पानी के साथ अंडेल चुकी थी। वो जैसे चाय का कहने आया था इसे देखकर चौंका। इसका जूठा तेजी से खा रही थी। इसे पहली बार किसी को जूठा खाते देखा था। लड़की, इसने पुकारा तो वो चौंकी, झट से पहले रुकी। सॉरी, वो मैं लिस्ट बना दो, कल घर का सामान आ जाएगा। वो कहता बिना चाय का कहे निकल गया था। शायद चाय का सामान भी ना हो तो इसे शर्मिंदा ना होना पड़े। वहां वो शर्मिंदगी के समंदर में गिर गई थी। इसने प्लेट धोकर रखी, वापस अपनी जाए पनाह की तरफ चली गई कि अब खाना खाते थकावट से इसे फौरन नींद आ जाती। इसने आंखें मूंदे खुद को जिंदगी में आने वाली